Hello everyone. Let us today work with one topic of grammar, or we can tell one topic of writing skill. Actually, we can include in that. Okay. So, what topic it will be is which topic we will work today. That will be comprehension of unseen passages. See, we'll be working with comprehension today. Now, comprehension की बात करें तो एक पैराग्राफ दिया जाएगा और वो पैराग्राफ के नीचे आपको कुछ क्वेश्चंस दिए जाएंगे एंड यू हैव टू सॉर्ट आउट दैट क्वेश्चंस. आपको वो क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं, वो पैराग्राफ को अच्छे से रीड करके, उसको अच्छे से समझ के. Okay, after you read that paragraph, you have to understand that paragraph properly, then only you can able to answer questions given below. Now questions can be either in multiple choice question, or it can be in answer the following questions with one word, answer in short, answer in detail, true or false. In any way, this comprehension questions can be asked. So one have to prepare comprehension very nicely, I can say, and properly. Okay, and see, comprehension is one topic. Comprehension जो है वो एक ऐसा टॉपिक है जो आपको थ्रू आउट इन ऑल द क्लासेस comprehension तो आएगा ही आएगा. Either you are in 5th standard, or you are in 10th standard, or you are in 12th standard. Whenever you work with whenever you have to deal with your language subject, you have to attempt one question related to comprehension. Okay, so comprehension is the most important part, और हमें यही अच्छे से पता होना चाहिए कि एक्चुअल में comprehension हम सॉल्व कैसे करें. How we can solve the comprehension easily so that we can get full marks. Okay, see, now up till now you people are not in 1st standard or 2nd standard that you will get answers word to word and you will directly copy down as your answers. No, you have to understand the comprehension, and by understanding you have to make your own answers most of the time. कोई ही आंसर होगा जो आपको मिल सकता है कॉम्प्रीहेंशन से, अदरवाइज़ आपको आंसर्स खुद बनाकर लिखने होंगे अगर आप कॉम्प्रीहेंशन समझोगे तब. अंडरस्टूड? ओके. एंड कॉम्प्रीहेंशन में जो क्वेश्चंस होते हैं वो इट कम्स लाइन टू लाइन. We will do one comprehension today by which you will get idea in what way we have to cover up our comprehension. हमें comprehension किस तरह से करना चाहिए वो हमें आज एक as a sample we will just go through one of the comprehension. Okay everyone, are you all ready? Let us go on with one of the comprehension today. Now comprehension की बात करें तो we have one comprehension here. Okay, we can tell passage also as it is written. Read the passage given below and answer the following questions. आपको नीचे जो questions है उसके answers ढूंढने हैं, लेकिन आपको directly answers नहीं मिलेंगे जब तक आप ये paragraph read नहीं करते. Okay, okay, fine. But I suggest you, once you go with this paragraph, फर्स्ट गो विद ओनली क्वेश्चंस. अगर आप क्वेश्चंस के साथ जाओगे तो आप क्वेश्चंस के इम्पॉर्टेंट वर्ड पिक कर सकते हो. ओके, फॉर एग्जांपल सी द फर्स्ट वन. अगर हम देखें तो इट इज़ व्हाई इज़ स्मोकिंग हार्मफुल टू यंग एंड हेल्दी पीपल. सो व्हाट इट इज़ रिटन अबाउट हार्मफुल टू यंग एंड हेल्दी पीपल. स्मोकिंग, अब क्वेश्चन को समझिए अच्छे से. स्मोकिंग क्यों यंग और हेल्दी पीपल के लिए हार्मफुल है? दिस इज़ द क्वेश्चन. ओके, ऑप्शंस में क्या लिखा है? इट लीड्स टू हैप्पीनेस,
ये तो कॉम्प्रिहेंशन पढ़े बिना ही हमें पता चल सकता है कि ये आंसर तो नहीं ही होगा, राइट। सेकेंड कैन बी इट लीड्स टू हार्ट अटैक। ओके, पॉसिबल है। लेट अस सी द नेक्स्ट टू ऑल्सो। नेक्स्ट इज बोथ ए एंड बी, बट दैट इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज ये हैप्पीनेस वाला तो आएगा ही नहीं, सो दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी पॉसिबल, राइट। तो एंड व्हाट इज़ दिस रिटर्न? नन ऑफ द अबव। नाउ नन ऑफ द अबव हो सकता है या ये, क्योंकि ये दो तो निकल गए, वो तो आ ही नहीं सकते। सी नॉर्मल है, आई नो फॉर दिस easily we can get answer that is it leads to the heart attack, okay, बट वो हमें पता है, क्या पता कॉम्प्रिहेंशन में कुछ और लिखा हो। सो डोंट सिंपली डायरेक्टली डू टिक मार्क ऑन बी ऑप्शन, ओके। बी ऑप्शन पे डायरेक्टली टिक मार्क करना वो सही नहीं होगा। लेट अस गो थ्रू, हमें उसके लिए पैराग्राफ में जाना होगा, बट एज आई सेड यू कॉम्प्रिहेंशन पढ़ने से पहले क्वेश्चंस पढ़ लें तो हमें ज़्यादा इजी रहेगा। सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द चेंज दैट हैज़ टेकन प्लेस इन द वेस्ट ड्यूरिंग द लास्ट डिकेड। सी वन इज चेंज, वेस्ट एंड लास्ट डिकेड, ये तीन वर्ड्स हुए इंपॉर्टेंट वर्ड्स इस क्वेश्चन में, ओके। अब मतलब इस क्वेश्चन का मतलब क्या है कि लास्ट डिकेड दैट इज़ लास्ट 10 ईयर्स में वेस्ट की प्लेसेस में, सॉरी वेस्ट में कौन से चेंजेस, कौन से बदलाव हुए हैं, ओके। नाउ लेट अस गो थ्रू विद ऑप्शंस आल्सो। द नंबर ऑफ स्मोकर्स इन वेस्ट हैज़ इंक्रीज्ड, द नंबर ऑफ स्मोकर्स इन वेस्ट हैज़ इंक्रीज्ड बाय ऑलमोस्ट 40%, द नंबर ऑफ स्मोकर्स इन द वेस्ट हैज़ ड्रॉप्ड बाय 20%, द नंबर ऑफ स्मोकर्स इन द वेस्ट had dropped almost by 40%. So 2 points are related to increased and next 2 points are related to dropped, okay. So this is our second question. Let us go with third question. What is the changes that has taken place in India during the last decade? Last 10 सालों में इंडिया में कैसे बदलाव आए हैं? The number of smoker in India has dropped by 20%. The number of smoker in India has dropped by 40%. The number of smoker in India has doubled. The number of smoker in India has increased by 40%. So ये चार ऑप्शन दिए गए हैं किसके लिए कि इंडिया में स्मोक के रिलेटेड क्या बदलाव आए हैं। Now fourth one, how can a person reduce a chance of having a heart attack? पर्सन हार्ट अटैक आने के चांसेस कैसे रिड्यूस कर सकता है? बाय कंज्यूमिंग कोला, बाय ईटिंग जंक फूड, बाय स्मोकिंग, बाय गिविंग अप स्मोकिंग। सो ये चार ऑप्शन है हमारे पास कि कुछ कंज्यूम करके, जंक फूड खा के, स्मोक करके या स्मोकिंग छोड़कर किस तरह से लोग जो है वो हार्ट अटैक के चांसेस कम कर सकते हैं। दैट वाज रिगार्डिंग आवर फोर्थ क्वेश्चन एंड आवर फिफ्थ क्वेश्चन इज फाइंड द वर्ड इन द पैसेज मीन्स द सेम एज गिवन अप, लीविंग, क्विटिंग, स्टार्टिंग, कंटिन्यूइंग एंड टेकिंग अप। नाउ ये हमारे पास 5 क्वेश्चन हैं। सी मैंने अभी तक ये कॉम्प्रिहेंशन पढ़ा नहीं है, हमने सिर्फ ये 5 क्वेश्चंस पढ़े हैं। ये 5 क्वेश्चन से एक बात तो साबित होती है कि दिस कॉम्प्रिहेंशन इज़ समवट रिलेटेड टू स्मोकिंग। ये कॉम्प्रिहेंशन स्मोकिंग के रिलेटेड है, राइट। तो ऑल 5 क्वेश्चंस हमने पढ़ लिए। ऑल 5 क्वेश्चंस में जो मेन वर्ड्स थे वो भी पिक कर लिए। थर्ड में दैट चेंज इन इंडिया ड्यूरिंग लास्ट डिकेड, then reduce the chance of heart attack, reduce and heart attack, and word means giving up, right, word means giving up, okay। चलिए let us see about comprehension now. If there is one single factor responsible for the alarming rise in heart attack among young seemingly healthy Indians, it is smoking. सो फर्स्ट लाइन में एक रीज़न, एक
फैक्टर दिया है जो रिस्पॉन्सिबल है स्पेशली इंडिया में स्मोकिंग बढ़ने का। ओके, उसके रिलेटेड आई थिंक हमारे पास कोई क्वेश्चन नहीं है। फॉर पेशेंट्स यंगर देन 40 स्मोकिंग इज़ द मेन कॉज ऑफ हार्ट डिजीज़। यहाँ पर पेशेंट दैट इज़ 40 ईयर्स के ओल्ड से जो कम लोग हैं उनको ज़्यादातर हार्ट अटैक होता है स्मोकिंग की वजह से। While the number of people who smoke has dropped by 40% in the West over the past decade. Okay, 40% in the West. So हमने ये second question पढ़ा था, right? Change that has taken place in West. So क्या है यहाँ पर? Dropped by 40%. So 40% dropped मतलब our D will be the correct answer for our second question. See, अब यहाँ पर second question का आंसर मिल रहा है। मैंने first question तो अभी तक solve ही नहीं किया। Let us read first question again. Why is smoking harmful to young and healthy people? Why is smoking harmful to young and healthy people? So young and healthy people के लिए जो smoking है वो harmful है क्योंकि ज़्यादातर हार्ट डिजीज़ दैट इज़ हार्ट अटैक में राइज हो रहा है। ओके, नाउ सी हेयर इट इज़ रिटन इट लीड्स टू हार्ट अटैक। यहाँ पर इट लीड्स टू हार्ट अटैक, ये इट लीड्स टू कहीं नहीं लिखा हुआ। यस, बट फर्स्ट टू लाइंस को अगर हम अच्छे से रीड करें तो हमें ये पता चलता है कि स्मोकिंग यंग और हेल्दी लोगों के लिए हार्मफुल क्यों है, क्योंकि उससे हार्ट अटैक होता है। सो बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ओके, अब यहाँ तक हमने रीड किया एंड वी गॉट 2 आंसर्स। ओके, लेट अस रीड थर्ड क्वेश्चन वंस अगेन। व्हाट इज़ द चेंज दैट हैज़ टेकन प्लेस इन इंडिया ड्यूरिंग द लास्ट डिकेड। सो वेस्ट में जो चेंजेस हुए उसके बारे में पता चल गया। अब इंडिया में कौन से चेंजेस हुए वो देखते हैं। इट हैज़ अस्टोनिशिंगली doubled in India over the same period. Doubled in India. Okay, अब यहाँ पर ऑप्शंस देखें तो नंबर ऑफ स्मोकर्स ड्रॉप्ड है, सेकंड में भी ड्रॉप्ड है, तो ये दोनों नहीं आएंगे। थर्ड इज देयर, द नंबर ऑफ स्मोकर इन इंडिया हैज़ डबल्ड, सो दिस विल बी द करेक्ट आंसर, राइट। अब यहाँ तक पहुँचे और हमारा थर्ड आंसर हमें मिला। Let us read the fourth question. How can a person reduce the chances of having the heart attack? Person कैसे reduce कर सकता है? Let us see. Let us see. After we finish answer third, we will continue our reading. Smoking a pack of cigarette a day makes you 7 times more vulnerable to heart disease than the non-smoker. However, by quitting smoking, one can cut down the risk of huge margin. By quitting the smoking, okay, by quitting the smoking, we can tell here the fourth answer is by giving up. Sorry, okay, let us see the question again. That is, how can the person reduce chances of having heart attack? So it will be by giving up. Okay, क्योंकि हमने यहाँ पे पढ़ा by quitting smoking. Okay, now which is the word used for giving up? Giving up के लिए कौन सा word use किया है? So here the answer is quitting, because over here the word quitting is used. Understood? So all these 5 answers are done. Okay, now one important thing जो बतानी है आपको, one important and the last thing for this video, when we go with first answer, as I told, first answer is here, second answer is here, okay, third answer here, fourth answer is here and fifth answer is also here. ऐसा नहीं हो रहा कि फर्स्ट आंसर समवेयर यहाँ है, सेकंड यहाँ है, थर्ड ऊपर है, नो, इट ऑल गोज सीरियल वाइज, टर्न ही जाता है। फर्स्ट आंसर तक जितनी भी लाइन कवर अप हो गई है
वो आपको सेकंड आंसर के लिए रीड नहीं करनी होती, क्योंकि सेकंड आंसर फिर उसके नीचे की लाइंस में ही होगा. यू हैव टू बी वेरी केयरफुल विद दिस थिंग. अंडरस्टूड? लाइक फिफ्थ आंसर अगर आपको ढूंढना है एंड ऑलमोस्ट 4 लाइंस आप पढ़ चुके हो, तो फिफ्थ आंसर के लिए ये 4 लाइंस दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फिफ्थ आंसर ये लाइंस में ही होगा. दैट इज़ लास्ट लाइंस में ही फिफ्थ आंसर होगा. अंडरस्टूड एवरीवन? सो इन दिस वे वी हैव टू डू आवर कॉम्प्रीहेंशन. इस बात का ध्यान रखिएगा. ओके, नाउ दीज आर MCQ रिलेटेड कॉम्प्रीहेंशन. हम नेक्स्ट टाइम में कॉम्प्रीहेंशन करेंगे जिसमें हमें क्वेश्चन आंसर्स भी सॉल्व करने होंगे, सो दैट हम अपनी लैंग्वेज में आंसर्स लिखने की ट्राई करें. ओके एवरीवन, go through this explanation properly and I will give you some more PDF related to it. Thank you.